Hello everyone. In this session, we will talk about measurement of time, speed and much more. So let's start our first topic, measurement of time. In earlier days, people used to measure time by simply looking at the sun and the मून. वे सन और मून की पोजीशन को देखकर टाइम को मेजर करते थे. सो द टाइम इंटरवल बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज कंसिडर एज वन डे, और वन फुल मून डे से नेक्स्ट फुल मून डे के बीच के टाइम को वन मंथ की फॉर्म में, वन स्प्रिंग से नेक्स्ट स्प्रिंग तक के बीच के टाइम को वन ईयर की फॉर्म में वो कंसिडर करते थे. ऑल दिस मेजरमेंट ऑफ टाइम वर बेस्ड ऑन द इवेंट्स ऑफ नेचर विच अकर रेगुलरली एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. There were also some clocks that was used to measure the time, like candle clock, water clock, sand clock, sundial. Nowadays, time is measured by modern clocks and watches like wristwatch, stopwatch, table or alarm clock. The standard unit of time is second. Other units for time are minute, hour, day, month, year, decade and century. Let's find out how these clocks measure time. Sand clock. Sand clock was used by Romans. It works on the principle that all the sand from the upper chamber falls into lower chamber. अपर चैम्बर में जो सैंड होता है वो लोअर चैम्बर में एक फिक्स इंटरवल में टाइम में गिरता रहता है. दैट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम वाज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम, कॉमनली कॉल्ड आवर. एंड द सैंड क्लॉक वॉज ऑल्सो नोन एज आवर ग्लास. जब अपर चैम्बर से पूरा सैंड नीचे चैम्बर में फिल हो जाता है, पूरा नीचे आ जाता है, तो हम इसको फिर बाद में टर्न कर दिया जाता था. स्टॉप वॉच एंड स्टॉप क्लॉक्स को हम अपने विल के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं. इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेजर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल्स. They are used to measure time intervals during scientific experiments, sports events, and so on. Sundial. The sundial was first made by the Egyptians in the year 800 BC. It has a triangular metal plate fixed vertically at the center of a circular plate. The device was placed in the sun. सनडायल के फेस पर एक शैडो कास्ट करता है एंड द पोजिशन ऑफ द शैडो ऑन अ स्केल गिव्स द टाइम. एक्चुअली सनडायल्स कैन टेल द टाइम क्वाइट एक्यूरेटली, बट द प्रॉब्लम इज दैट दे कैन नॉट बी यूज्ड आफ्टर सनसेट, नोर कैन दे कैरीड अराउंड. नाउ सिंपल पेंडुलम एंड पेंडुलम क्लॉक. The first pendulum clock was invented by the Dutch scientist Christian Huygens in 1957. It was based on discovery of Galileo. A simple pendulum consists of a small metallic solid sphere by a thread. The metallic ball is also called the bob of the pendulum. When the bob moves from O to A to B and B to O, it completes one oscillation, and the time taken by the pendulum to complete one oscillation is known as its time period. Nowadays, modern electronic watches are used to measure the time. These works on a different principle. These watches have crystals of a substance called quarters. These crystals can vibrate very fast at a precise rate. These vibrations are used to measure the time accurately. Now, speed. We know that an object is said to be in motion when it changes its position with respect to time or its surroundings. But अगर two bodies एक साथ move करती हैं, then how can we judge that which moves faster? I'll explain. We know that a car moves faster than a bicycle. It means जो एक कार एक पर्टिकुलर टाइम में जितने डिस्टेंस कवर करती है, वो बाईसाइकिल के द्वारा उसी सेम पीरियड में जितनी डिस्टेंस कवर की जाती है उससे ज़्यादा होती है. सो वी से दैट द स्पीड ऑफ द कार इज मोर देन द स्पीड ऑफ द बाईसाइकिल. सो स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन
यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जितनी भी डिस्टेंस एक व्हीकल के द्वारा या बॉडी के थ्रू कवर की जाती है उसे क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। वी मेजर स्पीड इन मीटर पर सेकेंड and also kilometer per hour. If we denote speed to s, distance to d and time to t. So the formula of speed is s is equals to d upon t. On the dashboard of the vehicles like cars, buses, trucks, etc., you must have seen an instrument called speedometer. The speedometer records the speed of the vehicle at a certain point of time. On the speedometer, there is another meter called odometer, which records the total distance moved by the vehicle. Uniform motion. If an object covers equal distance in equal interval of time, then it is said to be in uniform motion. For example, an object moves in a straight line. It travels 4 meter in every second. Look, distance travel in first second 4 मीटर, second 4 मीटर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेकेंड में कितने डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है, 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। नाउ स्पीड फॉर द एंटायर ड्यूरेशन, सब के सब हम डिस्टेंस को जो उसने कवर किया उनको ऐड करेंगे और टाइम जो जितना भी टाइम उसने लिया है उससे उसको डिवाइड कर देंगे, बिकॉज एस इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी। तो 6 सेकेंड में कितने उसकी स्पीड होगी, एस इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी, डी की वैल्यू पुट करेंगे और टी की वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एस इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. If the object do not cover equal distance in equal interval of time, then it is said to be in non-uniform motion. For example, if an object moves in a straight line, it travels following distance, like distance traveled in first 2 seconds 5 meter, second 2 seconds 10 meter, third fourth में 7 meter and 2 meter की distance वो cover करता है. So speed of the complete round 5 + 10 + 7 + 2, ये तो डिस्टेंस होगा इसकी टोटल. टी कितना हो जाएगा, 2 × 4, क्योंकि ये 4 टाइम है और हमने स्टार्टिंग की 2 सेकेंड्स लिए इसलिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4. अब इसको सोल्व करेंगे तो 24/8 एंड एस इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड. डिस्टेंस टाइम ग्राफ. देयर आर सेवरल वेज टू स्टडी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, but distance time graph plot is the best way. So let's find out how can we draw a distance time graph. First we draw this, like this and this. This is x-axis and this is y-axis. We take its first quadrant, this and this. This is x-axis and this is y. Here we represent time on x-axis and distance on y-axis. वी कैन ऑल्सो चेंज इट, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं. एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वाई एक्सिस पर हम टाइम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो लेट्स देखते हैं हम कैसे इसको फाइंड करते हैं. इफ वी हैव अ डेटा, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्टेंस 5 मीटर in 1 सेकेंड, क्योंकि हमारे पास डेटा है जो कि एक ऑब्जेक्ट एक कार मेजर करती है इतनी डिस्टेंस. 1 सेकेंड में 5 मीटर, 2 सेकेंड में 10 मीटर, 3 में 15, 4, 20, 5 में 25 एंड 6 में 30 मीटर की डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट कवर करता है. तो हम इसके डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक दिस. एक्स एक्सिस पर हम 1, 2, क्योंकि हम इस पर टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे मार्क कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस पर हम मीटर में डिस्टेंस को मार्क कर लेंगे लाइक 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30. नाउ 1 सेकेंड में वो 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है तो हम 1 से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, लुक. एंड 5 मीटर की 5 से भी हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे. दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट को हम इसे मार्क कर लेंगे. नेक्स्ट है सेकेंड, 2 सेकेंड में वो 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है तो हम ऐसे 2 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस एंड 10 से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस. इंटरसेक्शन पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे. ऐसे 3 में भी हम 3 में वो
3 सेकेंड में 15 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। तो 3 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस एंड 15 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को भी मार्क कर लेंगे ऐसे 4, इसको मार्क कर लेंगे 5 सेकेंड में 25 मीटर के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसे मार्क करेंगे। नेक्स्ट वन 6 सेकेंड में वो 30 मीटर की जो डिस्टेंस कवर करता है उसे भी हम मार्क कर लेंगे। ये सारे इंटरसेक्शन पॉइंट जब एंड में हमें मिल जाएंगे, हम इन सारे इंटरसेक्शन पॉइंट को आपस में मिला देंगे, इन्हें मीट करा देंगे। इसके बाद जो हमें ये लाइन ड्रॉ, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो लाइन मिलती है हमें, ये ही क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इन सारी लाइन को हम रब कर देते हैं। मेन क्या है, ये वाली लाइन जो होती है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है। दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन। नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। टाइम इन सेकेंड एंड डिस्टेंस इन मीटर। 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करता है कोई ऑब्जेक्ट, 5 मीटर। 2 सेकेंड में 15, 3 में 10, 4 में 20 एंड 5 सेकेंड में वो 30 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। इट मीन्स डिस्टेंस टाइम इक्वल है 1, 2, 3, 4, लेकिन डिस्टेंस जो मीटर में वो कवर कर रहा है वो 5, 15 वो नॉन यूनिफॉर्म उसमें आ गई, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। टाइम इक्वल है लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं है। तो हम इसके डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे ड्रॉ करेंगे, लाइक दिस। वी रिप्रेजेंट टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस। सो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हम सेकेंड को इस पे एक्स एक्सिस पे मार्क कर देते हैं, और वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस को ऐसे मार्क कर लिया 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। नाउ 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर की उसने, तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे 1 सेकेंड में 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करी। हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लुक दिस, और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें कहाँ मिल जाता है, यहाँ पर। ठीक है, हम इसको पॉइंट कर लेते हैं। नाउ 2 सेकेंड में कितने डिस्टेंस कवर करता है, 15। हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, और एक 15 से दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें यहाँ पे मिलता है, हम दोनों को मार्क कर लेते हैं। नाउ 3 सेकेंड में वो 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है, तो लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे इधर से और यहाँ से ऐसे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमें यहाँ मिल जाता है। नाउ 4 सेकेंड में कितने डिस्टेंस कवर करता है, 20 मीटर। ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा। नाउ 5 सेकेंड में कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, 30 मीटर, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा। अब सारे इंटरसेक्शन पॉइंट को हम स्टार्टिंग से मिला देंगे, दिस लाइक दिस। दिस इज द टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में एक स्ट्रेट लाइन रहती है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, वो किसी भी शेप में हो सकता है। दैट्स इट।